Alright, guys. So today we'll be actually seeing the questions. All right, some more questions regarding work, energy, and power. All right. So in the question, it says that figure 3.1 shows an aeroplane of mass 3.4 10 to power 5 kg accelerating uniformly from rest along a runway. All right. This is the aeroplane and so on. It is actually um uh, it has a mass 3.4 10 to power 5 kg and it is accelerating. The main thing is that you need to focus on what accelerating. Say it says after 26 seconds. This is actually the total time taken. It says after 26 seconds, it reaches a speed of 65 meters per second. So this is actually what this is your final speed. All right. This is your final speed, that is 65 meters per second. And the initial speed, because the aeroplane exited from rest, the initial speed was actually what u, that was zero. All right. Calculate the acceleration of the aeroplane. So acceleration निकालने के लिए we have the formula, that is acceleration equals v minus u over t. All right. We need to find the acceleration and final speed is what? 65. Initial speed is 0. And the time taken for the acceleration to occur is 26 seconds. तो यहाँ पे आप 26 डालेंगे. You will get answer of what? 2.5 meter per second square. All right. Let me just do it. So 65 divided by 26, that is around 2.5 meter per second square. All right. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट तो यहाँ पे भाई एक्सेलरेशन आ गई कि एरोप्लेन इस एक्सेलरेशन से जा रहा है. नो इश्यूज, आगे चलते हैं. अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एरोप्लेन. तो सिंपल सी बात है, इफ यू हैव द एक्सेलरेशन यू कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एज वेल. सही है. तो एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स का आपस में क्या लिंक है? दैट रिजल्टेंट फोर्स हैज अ फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स एम ए. अब इसमें जो फोर्स होती है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स. तो मास ऑफ द एरोप्लेन, यू नो दैट mass of the aeroplane given था, that was this is the mass of the aeroplane 3.4 10 to power 5 kg. all right. तो आपका resultant force आपको चाहिए, mass is what? 3.4 10 to power 5 kg. Acceleration is 2.5, which you have just calculated in part 1. All right, no issues in that. आप इसको multiply करोगे, let's say 3.4 expand plus 5 multiply by 2.5. तो what is the answer? 850,000 newtons. सही है. तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, that is going to be what? 850,000 newtons. All right. अच्छा, next part. Now the aeroplane is accelerating, उस पर हमने resultant force भी निकाल ली, उस पर हमने एक्सेलरेशन भी निकाल ली. अब वो क्या बोल रहा है? इट सेज just after taking off the aeroplane continues to accelerate, it gains height. यानी वो ऊपर जा रहा है. It is gaining height and it is going up. alright. तो फिर आपसे बेसिकली क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? State two forms energy that increase during this time. Two forms of energy that are increasing. तो सबसे पहले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग. तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास रिलेटेड है भाई सिंपल स्पीड से. अगर स्पीड बढ़ेगी इट मींस इट इज एक्सेलरेटिंग, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी. एंड द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज. तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा दैट काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट? इंक्रीजिंग. लेट मी जस्ट राइट इट. काइनेटिक एनर्जी. सही है. और फिर क्या चीज इंक्रीज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, इसके साथ साथ उसकी जीपीई भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज उसने बोला है दैट द एरोप्लेन इज गेनिंग हाइट. तो जो चीज जितनी ऊपर जाती है ग्राउंड लेवल से उतनी उसकी जीपीई इंक्रीज होती है बिकॉज जीपीई इज सेंसिटिव या रिलेटेड टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड. ऑलराइट. तो मैं अगली चीज यहाँ पे लिखूंगा, दैट विल बी व्हाट? दैट इज गोना बी जीपीई. ऑलराइट. लेट मी जस्ट राइट इट. दिस ग्रेविटेशनल. अच्छा, जीपीई आपने नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, यू विल राइट इट द होल, द ग्रेविटेशनल potential energy. All right. Next, it says state one form of energy that decreases during this time. कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है भाई? सिंपल सी बात है, ये दोनों तो इंक्रीज हो रही है. कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है? देखो, एरोप्लेन ऐसे तो नहीं चल रहा ना हवा पे या पानी पे. एक्चुअली इट हैज ऑयल इन इट, इट हैज सम फ्यूल. तो फ्यूल बर्न हो रहा होगा, फ्यूल विल वुड हैव बीन यूटिलाइज्ड. सही है. तो फ्यूल जब यूटिलाइज हो रहा होगा तो बेसिकली उसके अंदर, फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? इंटरनल एनर्जी. तो सॉरी, potential energy. This is the stored amount of energy. The potential energy of the fuel is decreasing because fuel burn हो रहा है, जिसकी वजह से इंजन चल रहा है एरोप्लेन का, एंड इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल. तो सिंपल हम बोलेंगे दैट potential energy of the fuel is
बर्निंग, नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है भाई स्टोर्ड एनर्जी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। इट सेज स्टेट व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ द एरोप्लेन डिक्रीजेस ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, टोटल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है भाई? टोटल एनर्जी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना भाई, सिस्टम की बात हो रही है। एरोप्लेन किसी ना किसी इन्वायरमेंट में, किसी ना किसी सिस्टम में एक्चुअली आपके पास उड़ रहा है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग। सही है, तो सिस्टम की बात हो रही है। तो टोटल एनर्जी उसकी डिक्रीज क्यों हो रही है? टोटल एनर्जी इसलिए डिक्रीज हो रही है भाई, सिंपल सी बात है कि आपके पास, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ, टोटल एनर्जी इसलिए डिक्रीज हो रही है दैट आपके पास सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। सही है, थोड़ी बहुत एनर्जी सराउंडिंग पे लूज हुई, दैट्स व्हाई टोटल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एज सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इट सेज व्हेन द एरोप्लेन when the aeroplane reaches its maximum height, it starts to follow a curve path at constant speed। यानी जब हाइट पे यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, अब इट फॉलोज अ कर्व पाथ, यानी ये कर्व में जा रहा है, कर्व में जा रहा है। सही है, तो आप देखो ये जो कर्व पाथ है इसने बेसिकली क्या बनाया, एक सर्कुलर मोशन। तो इट सेज स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इन द एरोप्लेन। तो डायरेक्शन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स यानी सर्कुलर मोशन में किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। यू पीपल हैव डन दैट इन द क्लास, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स में क्या करूंगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और इस सेंटर टुवर्ड्स फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट टिल here. We'll see you in the upcoming questions as well of the videos.